Hello, good morning students. Myself Vishal Patel, your math teacher. We are learning miscellaneous exercise 1, final exercise of chapter 1, sets. So question number 1, right? Decide among the following set which sets are subsets of one and another. Let if A is equal to x where x belongs to R and x satisfy the equation x square minus 8x plus 12 is equal to 0. So here x belongs to R. We have to find out the x, and equation is x square minus 8x plus 12 is equal to 0. So using the splitting the middle term, 12 ones are 12, so minus 8 is minus 6 and minus 2, 6 2s are 12. So x minus 6 and x minus 2 is a factor, so x is equal to 6 or x is equal to 2. So A is equal to 2 and 6. So A is equal to 2 and 6. So we convert A into roster form. B, C, D is already in roster form. Now we have to check which set is subset of any other sets. So first start with set A. In set A, the elements are 2 and 6 that present in set B and that also present in set C. So A subset of B and A subset of C. 2 and 6, 2 is not present in set D, so it is not subset of D, right? So 2 and 6 only present in B and C, so A subset of B and A subset of C is the final answer. Now we have check for set B. Set B element are 2, 4, 6 present in only C. So B is only subset of C, right? 2 and 4 does not present in D and 4 does not present in A. So B does not subset of A and D. B is only subset of C. Now we are checking of set C. All element of set C are does not present in any element. So C is not any subset. D element is 6, all present in A, present in B and also present in C. So D is subset of A, D is subset of B and D subset of C, right? 6 present in A, 6 present in B and 6 present in C. So our final answer is A subset of B, A subset of C, B subset of C, D subset of A, D subset of B and D subset of C. Okay, now move on to question number 2. Question 1 is over. In each of the following determinant, whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. राइट अगर ट्रू होगा तो आपको प्रूव करना है एंड फॉल्स होगा तो आपको जस्ट एक एग्जांपल देना है. सो प्रूव दैट वाले सम ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं. सो इतना याद रखना है स्टूडेंट्स कि आप एग्जांपल देके भी कर सकते हो. फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी. सो नॉर्मली इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है वो हमें मान लेना है, वो सपोज करना है और ऐसा ही सपोज करना है कि जो पॉसिबल हो. तो लेट ए इज इक्वल टू 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू बी. सो दैट्स वाई पूरा ए बी के अंदर आना चाहिए. तो पूरा ए सेट बी के अंदर आना चाहिए तभी पॉसिबल होगा. उसके अलावा ए 1 एंड 5 आप दूसरे एलिमेंट ले सकते हो. सो हियर 2 बिलोंग्स टू ए यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया एंड ए बिलोंग्स टू बी. Belongs to is always used for elements to set. So 2 3 is an element and set of 1, set of 2 3 and 5 is a set, right? So अगर A belongs to B किसी भी सेट को अगर सबसेट टू करना है आपको तो वो आपको सेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा. So here 2 belongs to A and A belongs to B, condition satisfied, but 2 does not belongs to B यानी कि B के अंदर 2 नहीं है. 2 3 साथ में है यानी कि वो लाइक B इज इक्वल टू A B C
1A 2 3B and 5 is C, यानी कि 2 3 is count as a single element, hence the given statement is incorrect, false. The given statement is false. Now move on to second. If A subset of B and B belongs to C, again B belongs to C यानी कि set to set, then A belongs to C, यानी कि here also set belongs to set is not possible. So आपको ऐसा कुछ सपोज करना पड़ेगा, A is equal to 6, B आप सपोज करो वो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में 6 आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में 6 आना चाहिए C के अंदर, तभी पॉसिबल है. A belongs to C, वरना पॉसिबल नहीं है. So A is equal to 6, B is equal to 6 7. So here A subset of B is true, B belongs to C is also true. B के सारे मेंबर यानी कि 6 7 is a element, वो एलिमेंट C के अंदर प्रेजेंट है. Then we have to check A belongs to C is true or false. Hence A belongs to C, यानी कि A subset of B is true, B belongs to C is true, but A belongs to C is not true, क्योंकि A 6 है और C के अंदर 6 नहीं है, 6 7 साथ में है. So A does not belongs to C. A is equal to 6 but C के अंदर 6 only 6 नहीं है सेट के अंदर, hence the given statement is false. Hence the given statement is false. राइट ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 1.2 में हमने देखा था कि सेट के अंदर सेट आए तो वो एज अ एलिमेंट काउंट होगा, और कभी भी बिलोंग्स टू अगर आपको लिखना है दो सेट के बीच में तो ऑब्वियसली A बिलोंग्स टू C होगा, तो A एज अ एलिमेंट C में होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन 3, इफ़ A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ C देन A सबसेट ऑफ C. सो इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट है वो हमें मान लेना है, सपोज करना है कि लेट X बिलोंग्स टू A, यानी कि X A के अंदर है. अब A के सारे एलिमेंट B में है, सो X ऑल्सो प्रेजेंट इन B बिकॉज A सबसेट ऑफ B. हियर A सबसेट ऑफ B इज गिवन एंड ऑल्सो B सबसेट ऑफ C इज गिवन. सो अगर X B में है तो X C में भी होगा, राइट, बिकॉज B सबसेट ऑफ C. सो देन A सबसेट ऑफ C, यानी कि X A में था और X C में भी है, सो A सबसेट ऑफ C इज प्रूव बिकॉज X बिलोंग्स टू A, और हम यहाँ से प्रूव करके लाए X बिलोंग्स टू C. X A में भी है और X C में भी है, दैट मीन्स A सबसेट ऑफ C. A सबसेट ऑफ C इज राइट आंसर, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. इन ईच राइट वाइज क्वेश्चन कंटिन्यू है, आपको ट्रू और फॉल्स कहना है, राइट. 4 5 एंड 6 अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करो, और अगर फॉल्स है तो एक कोई भी एक एग्जांपल दे दो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, इफ़ A डज नॉट सबसेट ऑफ B, A के सारे मेंबर B में नहीं है, एंड B डज नॉट सबसेट ऑफ C, B के सारे मेंबर C में नहीं है, देन A डज नॉट सबसेट ऑफ C. यानी कि सेम क्वेश्चन थर्ड था वही, उसमें सबसेट था, इसमें डज नॉट सबसेट है, तो आप ऐसा कुछ सपोज करो जो प्रेजेंट ना हो. सो A इज इक्वल टू 1 2, लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, राइट, एंड C is equal to 1 2 5. If A does not subset of B, वो तो प्रूव है, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, so A does not subset of B, and B does not subset of B, B के सारे एलिमेंट भी नहीं है C में, so A does not subset of B and B does not subset of C is true. Then we have to check A does not subset of C is true or false. A के सारे मेंबर C में प्रेजेंट है, so in every case A does not subset of C is not possible, right? So here A subset of C is possible in some case, right, but A subset of C, so the given statement is false.
so the given statement is false, राइट। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि A डज नॉट सबसेट ऑफ B, B डज नॉट सबसेट ऑफ C, तो A डज नॉट सबसेट ऑफ C ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ X बिलोंग्स टू A and A does not subset of B, then X belongs to B. If X belongs to A and A does not subset of B, so let A is equal to 5, 6 and A does not subset of B, so B is equal to 7 and 8. So here 5 belongs to A does not subset of B, then X belongs to B, that means 5 does not belongs to B, also 5 does not belongs to B, hence the given statement is incorrect. स्टूडेंट्स आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया वही आप एग्जाम्पल लो, आप कोई भी एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हो। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ A सबसेट ऑफ B and X does not belongs to B, then X does not belongs to A. Let A is A subset of B and X does not belongs to B. A के सारे मेंबर B में हैं बट X B में नहीं है, तो आप कुछ भी सपोज कर सकते हो कि सपोज X बिलोंग्स टू A। अगर X A में है तो X B में भी होगा बिकॉज X सबसेट ऑफ B, बट यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि A सबसेट ऑफ B कहा हुआ है बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B, which is a कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करना है, आपको उल्टा सपोज करना है, और अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप कह सकते हो हियर X डज नॉट बिलोंग्स टू A, hence the given statement A subset of B, X does not belongs to A, X does not belongs to B, then X does not belongs to A, hence the given statement is true. Right, now move on to question number 3. Let A, B and C be the set such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, so that B is equal to C. So अगर मान लो स्टूडेंट्स कि अगर आपकी स्कूल में अलाउ करते हैं कि आप कोई भी एग्जाम्पल लेके सम प्रूव कर सको, तो आप ABC को कुछ भी सपोज करके ट्राई कर सकते हो, राइट। वरना मैं आपको ये थियोरेटिकल मेथड बताता हूँ कि गिवन A, B and C आर सेट सच दैट A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C are given, ये हमें गिवन है। टू शो B is equal to C, B is equal to C प्रूव करने के लिए सबसे पहले कंसीडर कोई भी यूनियन या इंटरसेक्शन वाली आप ले सकते हो कि कंसीडर B इज इक्वल टू, B को आप ऐसे कह सकते हो B इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन B का जो भी आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन B के साथ भी ही होगा। अब A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C गिवन इन आवर स्टेटमेंट, सो A यूनियन B की जगह पे मैं A यूनियन C लिख सकता हूँ, राइट। सो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B। सो हियर वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। साइड में आपको ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, राइट। वी हैव यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। वी ऑल नो अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन C। नाउ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ और B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, राइट। कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया हमने, B इंटरसेक्शन A को आप A इंटरसेक्शन B लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया। अब A इंटरसेक्शन B
को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी गिवन इन अवर स्टेटमेंट, नॉट ओनली फॉर ऑल सम, only we can use this statement in this sum, a intersection b is equal to a intersection c. So here a intersection c union b intersection c, now we can use डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज़ किया कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c. नाउ a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c गिवन इन आवर स्टेटमेंट, a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c. सो a यूनियन c इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू c, क्योंकि a यूनियन c में से जो भी मिलेगा उसका इंटरसेक्शन c के साथ आप निकालोगे तो c कॉमन निकलेगा. सो b इज इक्वल टू c. दिस इज योर फाइनल आंसर. हैंस वी प्रूव दैट a यूनियन b is equal to c. Thank you. Now move on to question number 4 is also prove that so that the following 4 condition are equivalent. ये चारों के चार क्वेश्चन सेम है, ऐसा सबका मीनिंग सेम है, ऐसा हमें प्रूव करना है. आप एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो, राइट. अगर आपकी स्कूल अलाउ करती है तो सबसे इजी मेथड यही है कि यूजिंग एग्जांपल. बट यूजिंग प्रॉपर्टी कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. ए सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. ये चारों का मीनिंग सेम ही है, दिखने में बहुत डिफरेंट है, सबकी कहानी अलग अलग है, फिर भी आप कहोगे कि सर ये चारों का मीनिंग सेम है. यस. और आपको प्रूव करना है तो एनी हाउ आपको प्रूव करना ही है. प्रूव करने में तो आप सब बहुत माहिर हो. सो फर्स्ट ए सबसेट ऑफ बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 5 को हम ट्राई करते हैं. टू शो a सबसेट ऑफ b a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ये प्रूव करना है हमें, राइट. सो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a सबसेट ऑफ b, उसके ऊपर से हम प्रूव करते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 5. फिर उसके बाद हम मान लेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 5, देन प्रूव करेंगे a सबसेट ऑफ b. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a सबसेट ऑफ b, सो x बिलोंग्स टू a, दैट x ऑल्सो प्रेजेंट इन b बिकॉज a के सारे एलिमेंट b में हो गए. सो इफ वी कैन डू a माइनस बी यानी कि डिफरेंस सेट, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a प्रेजेंट इन b is obviously 5. So a subset of b, then obviously a minus b is equal to 5 is proven, right. Equation number 1. Now consider a minus b is equal to 5, then prove a subset of b. So let a minus b is equal to 5. A minus b is equal to 5. Let a does not subset of b. There is at least one element in a which is not in b. There is at least one element in a which is not in b. अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 5 होगा दैट मीन्स a के सारे एलिमेंट b में होंगे. अगर a डज नॉट सबसेट ऑफ b होगा तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू 5 होगा. सो हैंस आवर एजम्पशन a डज नॉट सबसेट ऑफ b इज रॉन्ग. If a minus b is equal to 5, then 110% a subset of b. So the first statement and second statement are proven from equation 1 and 2. A subset of b if and only if a minus b is equal to 5. आप कोई एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट. सो नाउ वी हैव टू प्रूव टू शो ए सबसेट ऑफ बी if and only if A union B is equal to B.
So first of all we prove A subset of B. If A subset of B, then A union B is equal to B. Then after if A union B is equal to B, then we can prove A subset of B. Let A subset of B, A के सारे मेंबर B में है. So let X belongs to A, that X also present in B. So X is also present in A union B, right? अगर A सबसेट ऑफ B होगा तो X ऑब्वियस A यूनियन B में होगा. X तो दैट मीन्स X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B. नाउ X बिलोंग्स टू A and X belongs to B. That means A subset, because A subset of B, that means अगर X A में होगा तो X ऑब्वियसली B में होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि X belongs to A union B. That means X belongs to B. So A union B is equal to B. A union B subset of B या फिर A union B is equal to B. Let X belongs to B. अब उल्टा प्रूव करते हैं. Let X belongs to B, then X belongs to A. A belongs to A union B. बिकॉज अगर X B में होगा तो ऑब्वियसली X A यूनियन B में प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि A यूनियन B में हम A और B के सारे एलिमेंट्स रखेंगे. दैट मीन्स B सबसेट ऑफ A यूनियन B. सो A यूनियन B सबसेट ऑफ B and B सबसेट ऑफ A यूनियन B. So from equation 4 and 5, A union B is equal to B. From equation 4 and 5, A union B is equal to B. So A subset of B, then A union B is equal to B. Equation number 6. Now prove A union B is equal to B, then A subset of B. यानी कि अब उल्टा हम प्रूव करेंगे. So let A union B is equal to B. A यूनियन B B, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, A सबसेट ऑफ B होगा. ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है. अब आप उल्टा भी सपोज कर सकते हो कि लेट A डज नॉट सबसेट ऑफ B, यानी कि अब कॉन्ट्राडिक्शन है. यानी कि लास्ट में आप ऐसे ला दोगे कि योर एजम्पशन इज रॉन्ग. सो A डज नॉट सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन A विच इज़ नॉट इन B. A के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो B में नहीं होगा. जो अगर ऐसा हुआ तो A यूनियन B डज नॉट इक्वल टू B, यानी कि जो आपको सपोज करने को लिए दिया हुआ है वही रॉन्ग हो जाएगा. सो दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. दैट मीन्स आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. A does not subset of B is wrong. So A intersection B is equal to B. That means A subset of A union B is equal to B if A subset of B. Equation number 7. So from equation 6 and 7, A subset of B, vice versa, if and only if A union B is equal to B. You can use same rule for question number 4. A intersection B is equal to A. To show A subset of B if and only if A intersection B is equal to A. So to prove A subset of B, first of all we can prove A subset of B if A subset of B, then A intersection B is equal to A. So let A subset of B, that means A के सारे एलिमेंट B में है. So let X belongs to A, that X also present in B and that X also present in A intersection B, क्योंकि दोनों में होगा तो कॉमन निकलेगा ही. So that means X belongs to A intersection B. So intersection की जगह पे आप लोग क्या लिख दोगे, and X belongs to A and X belongs to B. So X belongs to A intersection B, then X belongs to A.
So A intersection B subset A. Let X belongs to A, that X also present in B because A के सारे एलिमेंट B में है, A सबसेट ऑफ B पहले ही गिवन है. So X belongs to B because A is subset of B. If X is present in A, X is also present in B, यानी कि X दोनों में है तो ऑब्वियसली A इंटरसेक्शन B में भी होगा. So X belongs to A इंटरसेक्शन B. So इसका मतलब क्या हुआ? X belongs to A, that X also belongs to A intersection B. So A subset of A intersection B. Equation number 10. So from equation 9 and 10, A is equal to A intersection B. From equation 9 and 10, A is equal to A intersection B. So A subset of B implies A is equal to A intersection B. So from all of equation we conclude that, right? Now last A intersection B is equal to A implies A subset of B. So let A intersection B is equal to A. Now let A does not subset of B. Contradiction, right? You can also let X belongs to A. अगर X A में होगा तो X also A intersection B में होगा क्योंकि दोनों इक्वल दिए हुए हैं आपको कि A is equal to A union B, A intersection B is equal to A. अगर X A intersection B में होगा तो X A में भी होगा and X B में भी होगा. X belongs to A and X belongs to B. अगर X दोनों में है तो X belongs to A implies X belongs to A intersection B. So A subset of B implies A intersection B is equal to A. A intersection of B is equal to A implies A subset of B. So from all the above equation we conclude that all the following four conditions are equivalent, right? All the following four conditions are equivalent. A subset of B, उसको आप A minus B is equal to 5 भी कह सकते हो, उसको आप A यूनियन B इज इक्वल टू B भी कह सकते हो और उसको आप A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A भी कह सकते हो. आपके क्वेश्चन में या फिर MCQ में या फिल इन द ब्लैंक में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. सो दैट A सबसेट ऑफ B देन C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A. इफ़ A के सारे एलिमेंट B में हो गए तो C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A. Given that A subset of B, let X belongs to C minus B. Let X belongs to C minus B. That means X belongs to C and X does not belongs to B. डिफरेंस सेट में यही होगा, जो फर्स्ट लिखा होगा उसमें बिलोंग्स टू, सेकंड होगा उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू. इफ X belongs to C and X does not belongs to A, that means X also does not belongs to A because A subset of B. Because A subset of B, A के सारे एलिमेंट B में है. अगर X B में भी नहीं होगा तो X A में भी नहीं होगा because A subset of B. तो X belongs to C and X does not belongs to A, that means X belongs to C minus A. So जो X C minus B में था वही X C minus A में है. That means we prove that hence C minus B subset of C minus A. Now move on to question number 6. Assume that
पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी सो दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी कि आपको गिवन है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अगर दोनों का पावर सेट सेम है देन ए इज इक्वल टू बी। सो टू शो दैट ए इज इक्वल टू बी, let x belongs to a सो उसका जो सेट होगा, जो x का पावर सेट होगा, यानी कि पावर बॉक्स x बिलोंग्स टू p ऑफ a, सो बॉक्स a also belongs to p of b because we here given that p of a is equal to p of b। यानी कि जो x p ऑफ a में होगा, यानी कि पावर सेट में जो सेट होगा वो पावर सेट b में भी होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू b। सेम प्रोसीजर अगर आप उल्टी करोगे x बिलोंग्स टू b लेके, यार इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट किया था और आंसर आया x बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स a सबसेट ऑफ b। a के सारे मेंबर b में है, दैट मीन्स a सबसेट ऑफ b। सेम प्रोसीजर b से स्टार्ट करके a पे फिनिश करो और b सबसेट ऑफ a लाओ, तभी आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b। इफ a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, then you conclude that a is equal to b. Now let y belongs to b, that y also present in power set of b। अगर पावर सेट ऑफ b में होगा तो पावर सेट ऑफ a में होगा ही, बिकॉज पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b। सो y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। सो पावर सेट ऑफ a में है तो उसका मतलब क्या हुआ कि y a में भी होगा। पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a, सो वी आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। सो y बिलोंग्स टू a। सो b से स्टार्ट किया था, a से फिनिश हुआ, दैट मीन्स b सबसेट ऑफ a, दैट मीन्स b सबसेट ऑफ a। y बिलोंग्स टू b से स्टार्ट किया था और आपका आंसर आया y बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स b सबसेट ऑफ a। So from equation 1 and 2, equation 1 is a subset of b and equation 2 is b subset of a। So a is, so that any set of a and b, a is equal to a intersection b union a minus b and a union b minus a is equal to a union b। यानी कि कोई भी दो सेट के लिए आपको ये प्रूव करना है और ये जो भी प्रूव दैट सम है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आ सकते हैं। सो एज अ फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। सो गिवन टू सेट्स ए एंड बी, सो ये प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड उल्टा। सो वी नो दैट A is equal to A intersection union universal set। A is equal to A intersection universal set where U is the universal set। सबको पता है यूनिवर्सल सेट और A में से जो भी कॉमन निकलेगा तो वो A ही बचेगा। अब यूनिवर्सल सेट को आप B यूनियन B डैश कह सकते हो क्योंकि द यूनियन ऑफ द सेट्स एंड इज कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। सो B और B डैश का जो भी आप यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, तो यूनिवर्सल सेट की जगह पे आप लिख सकते हो B यूनियन B डैश। नाउ वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। क्या यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साइड में आपको प्रॉपर्टी लिखना कंपलसरी है, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, अगर वो टीचर्स को नहीं पता चला तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश को मैं A माइनस B कह सकता हूँ क्योंकि A माइनस B की फॉर्मूला है A इंटरसेक्शन B डैश। A इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू A माइनस B। हैंस A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B।
So first statement is proved. Now second, if we want to prove A union B minus A is equal to A union B. So first of all, consider A union B minus A is equal to A union B intersection A dash. A minus B is equal to A intersection B dash. So B minus A is equal to B intersection A dash. B minus A is equal to B intersection A dash. Now using distributive law, A union B intersection A union A dash. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? तो हमने यूज़ किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. So A union B intersection A union A dash is universal set because A union A dash is of course universal set. और यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो योर आंसर इज ए यूनियन बी. हैंस ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी. So this is your final answer. Using the property of the set, so that now question number 9. First, A union A intersection B is equal to A. A union A intersection B is equal to A, जो हमें प्रूव करना है. So now first of all consider A union A intersection B is equal to, using distributive law, A union A intersection A union B. So here we can say that यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब A यूनियन A का यूनियन A के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलने वाला है? A. सो A इंटरसेक्शन A यूनियन B. A इंटरसेक्शन A यूनियन B. अब आप सोचो, A यूनियन B यानी कि A के और B के सारे मेंबर को मिक्स करेंगे, जिसका A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या निकलेगा? राइट. सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एडेप्टेंट लॉ. सो एडेप्टेंट लॉ हमारा ये है कि इसका मतलब A होगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A, जो हमें प्रूव करना था. सो दिस इज आवर RHS बिकॉज A सबसेट ऑफ A यूनियन B. A के सारे मेंबर A यूनियन B में हो गए. हैंस A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A. आई थिंक ये पोर्शन आप सबको बहुत टफ लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है. आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हो. सेकंड खुद से ट्राई करने का वीडियो पॉज करके आप सेकंड सम खुद से सॉल्व करने का भी ट्राई कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर A इंटरसेक्शन A यूनियन B. So now using distributive law, A intersection A union A intersection B. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की वो आपको साइड में लिखना पड़ेगा हर बार कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ वी ऑल नो दैट A intersection A is of course A union A intersection B. A और B में से अगर आप जो भी कॉमन निकलेगा उसका यूनियन A के साथ करोगे तो ऑब्वियसली A ही आने वाला है यूजिंग एडेप्टेंट लॉ. एडेप्टेंट लॉ हमें यही कहता है कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A. बिकॉज A सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A. हैंस A intersection A union B is equal to A.
Now move on to question number 9. So that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. यानी कि A intersection B is equal to A intersection C को प्रूव होने में B is equal to C ज़रूरी नहीं है. तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. लेट A is equal to 0 1, और ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें A और B का इंटरसेक्शन और A और C का इंटरसेक्शन सेम हो. लेट A is equal to 0 1, B is equal to 0 6 and C is equal to 0 6 and 7. So here A intersection B is equal to 0 and A intersection C is also 0. So here A intersection B is equal to A intersection C. ऐसा ही एग्जांपल आपको लेना है, आप कोई और एग्जांपल ले नहीं सकते. So here A intersection B is equal to 0. A intersection C is also 0. A और C में कौन से कॉमन मेंबर है? तो ऑब्वियसली ओनली 0. सो हियर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C बट नॉट इम्प्लीफाई B इज इक्वल टू C. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C होगा तो B इज इक्वल टू C ही होगा. तो आप कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B A इंटरसेक्शन C बट B डज नॉट इक्वल टू C. Hence, A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. Now question number 10. Let A and B be set. A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi and A union X is equal to B union X for some set X so that A is equal to B. So यहाँ पे हिंट दी हुई है, आपको एडेप्टेंट लॉ का यूज़ करना है. Right? So solution here given that A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi and A union X is equal to B union X for some set of X. So X कोई सेट है जिसकी ये कंडीशन हो रही है कि अगर X का इंटरसेक्शन A के साथ या B के साथ करोगे तो फाई आ रहा है. सो एडेप्टेंट रूल का यूज़ हमें करना है कि A की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन A यूनियन X बिकॉज A सबसेट ऑफ A यूनियन X, बिकॉज A सबसेट ऑफ A यूनियन X. ये रूल आपको याद रखना है, ना याद रहे तो आप नोट करके लिख दो अपनी नोटबुक में. A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X जो हमें गिवन है. A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. ओनली फॉर दिस सम, फॉर सम सेट X. नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X. सो हियर कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की वो लिखना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. कौन सा लॉ हमने यूज़ किया? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो बहुत बार आ गया है, यानी अब तो आपको याद रहना ही चाहिए. A इंटरसेक्शन B यूनियन phi बिकॉज गिवन दैट A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू phi, गिवन दैट A intersection X is equal to phi so A intersection B union phi is equal to obviously A intersection B. So A is equal to A intersection B. Give equation number 1. Now we can use second adaptant law for B. B is equal to B intersection B union X because B subset of B union X, because B subset of B union X. Now we can use distributive law. B intersection B
सॉरी बी यूनियन एक्स की जगह पे आप ए यूनियन एक्स भी लिख सकते हो, गिवन इन योर क्वेश्चन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स. Now using distributive law, B intersection A union B intersection X by distributive law. Now B intersection A union phi, because B intersection X is equal to phi given in our question, B intersection X is equal to phi. Now अब B इंटरसेक्शन A का यूनियन अगर आप phi के साथ करोगे तो भी आंसर B इंटरसेक्शन A ही रहने वाला है, और B इंटरसेक्शन A को मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट. So B intersection A is equal to A intersection B, given that equation number 2. So B is equal to A intersection B, given equation number 2. So from equation 1 and 2, from equation number 1 and 2, A is equal to B. From equation 1 and 2, A is equal to B is equal to A intersection B. Okay, thank you. Hence A is equal to B. Now move on to question number 12. Find set A, B, C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5. यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर तीन सेट है A इंटरसेक्शन B में कुछ मिल रहा है, यानी कि वो नॉन एम्प्टी नहीं है, A इंटरसेक्शन B के कुछ एलिमेंट हो गए, B इंटरसेक्शन C के कुछ एलिमेंट हो गए एंड A इंटरसेक्शन C के भी कुछ एलिमेंट हो गए, यानी कि A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल टू 5, B इंटरसेक्शन C डज नॉट इक्वल टू 5 एंड A इंटरसेक्शन C डज नॉट इक्वल टू 5. और हमें प्रूव करना है कि तीनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, राइट. ये हमें प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5. So let A is equal to 1 2 3 4, B is equal to 3 5 7, C is equal to 4 5 9 and 10. C is equal to 4 5 9 and 10. So last we have to check A intersection B is equal to 5. याद रखना है स्टूडेंट, हमें A B C ऐसे ही सपोज करना है कि A इंटरसेक्शन B हमें 5 मिले, A और B में से A इंटरसेक्शन B 5 नहीं मिलना चाहिए, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन निकलना चाहिए. हियर 3 इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. नाउ B इंटरसेक्शन C. So in B intersection C, 5 is the common element in B and C. So B intersection C is equal to 5. B और C में से 5 कॉमन निकलेगा, so B intersection C is equal to 5. Now A intersection C. A इंटरसेक्शन C में से एलिमेंट 4 कॉमन निकलेगा, so A intersection C is equal to 4. So here A intersection B does not equal to 5, B intersection C does not equal to 5, A intersection C does not equal to 5, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल रहे हैं, राइट. सो A intersection B भी 5 नहीं है, B intersection C also does not belongs to 5, does not equal to 5 and A intersection C also does not equal to 5. But A intersection B intersection C, यानी कि तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो आप देख सकते हो कि तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो,
ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए बी सी तीनों में कॉमन हो। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, यानी कि अगर आप सपोज़ करके कुछ भी ट्राई करोगे तो इजीली प्रूव हो जाएगा, बट सपोज़ क्या करना है वो आपको पता चलना चाहिए, राइट। सो हियर ए बी सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5. Okay, hence A, B and C, A intersection B intersection C is equal to 5. Now move on to question number 13. Very easy question. In a survey of 600 student in a school, यानी कि स्कूल में टोटल 600 स्टूडेंट है, 150 were found to be taking tea, यानी कि 150 टी ले रहे हैं, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, यानी कि 225 को कॉफ़ी पसंद है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी एंड कॉफ़ी दोनों पसंद है। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनको टी और कॉफ़ी में से कुछ पसंद नहीं है। लेट्स सी एंड टी डिनोट द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी एंड टी, कॉफ़ी को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और टी को हम टी से डिनोट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे इज इक्वल टू 600, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वे इज इक्वल टू 600, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी यानी कि नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 150 गिवन इन अवर क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफ़ी यानी कि नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 225, that is also given in our question. Number of students taking both tea and coffee, number of students taking both tea and coffee is 100, both tea and coffee यानी कि टी इंटरसेक्शन सी। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एटलीस्ट टी और कॉफ़ी, यानी कि टी और कॉफ़ी में से कुछ पसंद हो ऐसा एटलीस्ट, यानी कि यूनियन की फॉर्मूला हम सबको पता है कि नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ टी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ टी इंटरसेक्शन सी। सो नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ टी 150, नंबर ऑफ़ सी 225, यानी कि 150 प्लस 225 माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज 100, सो आवर आंसर शुड बी 375 माइनस 100 यानी कि 275। सो 275 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वुड टेक एटलीस्ट टी और कॉफ़ी, दैट मीन्स 275, यानी कि 275 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो टी या कॉफ़ी में से कुछ तो पसंद कर ही रहे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, दैट मीन्स टी यूनियन सी होल डैश। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वू टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, दैट मीन्स 600 माइनस 275, 600 माइनस 275, यानी कि 275 स्टूडेंट को टी या कॉफ़ी में से कुछ पसंद है, तो बाकी कितने बचे, 600 में से 275 चले जाएंगे, तो इतने स्टूडेंट को टी या कॉफ़ी में से कुछ पसंद नहीं है। सो 325 स्टूडेंट टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी इज योर फाइनल आंसर, राइट। सो स्टूडेंट ऐसे आप 14 एंड 15 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, राइट। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं डाउट सेक्शन में करवा दूंगा। सो 14 and 15 is in your homework. Now move on to our last questions, question number 16. सो ये 3 वेरिएबल का है तो इसमें ध्यान रखना है। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 people like product C and A, 14 people like product B and C, and 8 like all 3 products,
फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी कि प्रोडक्ट सी ओनली कितनों को पसंद है वो आपको फाइंड करना है। आप कहोगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट सी का लिया हुआ है 29 लाइक प्रोडक्ट सी, बट 29 लाइक प्रोडक्ट सी उसके अंदर ए और बी को कॉमन भी अंदर उसके हो गए। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, राइट। सो द नंबर ऑफ पीपल लाइक ए, यानी कि नंबर ऑफ ए इज 21, द नंबर ऑफ पीपल who लाइक बी, यानी कि नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29, सॉरी 26 लाइक प्रोडक्ट बी, and the number of people who like C, that means number of C is equal to 29. So number of A is equal to 21, number of B is equal to 26 and number of C is equal to 29. Now 14 people like A and B, यानी कि A intersection B, A and B यानी कि A intersection B is equal to 14. Now 12 people like product C and A. So A intersection C is equal to 12. Number of A intersection C is equal to 12. Fourteen people like product B and C. So the number of people who like both B and C, यानी कि B intersection C is equal to 14. The number of people who like all three products, यानी कि number of A intersection B intersection C is equal to 8. 8 people like all three products. So number of A intersection B intersection C is equal to 8. Now all the data put in Venn diagram. So first of all we fill all three product वन बाय वन, यानी कि आपको सेंटर से स्टार्ट करना है तभी आपका आंसर आएगा, वरना आप रॉन्ग हो जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को करना है। पूरा ए हमें पता है कि 21, पूरा बी 26 एंड पूरा सी 29, यानी कि सर्कल में ए के सर्कल में 21, बी के सर्कल में 26 और सी के सर्कल में 29 होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है ऑलवेज तीनों का इंटरसेक्शन फील होगा, यानी कि यहाँ पे ये पोर्शन आपका हो गया 8, ये पोर्शन आपका था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, नाउ ए इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है 12। ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है 12, जिसमें से 8 ऑलरेडी आ गए हैं, जिसमें से 8 ऑलरेडी आ गए हैं। सो 12 माइनस 8, यानी कि आपको जो ऑरेंज पोर्शन है उसमें कितने लिखने हैं 4। अगर आपने 12 लिख दिए तो रॉन्ग, यानी कि पूरे ए इंटरसेक्शन सी में 12 है, उसमें से 8 चले जाएंगे तो बाकी का जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन सी का उसमें आप क्या लिखोगे 4, राइट। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है 14, जिसमें से ऑलरेडी बी इंटरसेक्शन सी के पोर्शन में 8 आ गए हैं, तो 14 माइनस 8 यानी कि 6, यानी कि नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स 8 माइनस 4, अगर ये फार्मूला नहीं लिखनी है तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट वेन डायग्राम में लिख सकते हो। हमें पता है बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू टोटल 14 आनी चाहिए, जिसमें 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, 14 में से 8 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बाकी कितने बचेंगे 6। सो 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। सो बी इंटरसेक्शन सी के पोर्शन में आपका आंसर आ जाएगा 6। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, नाउ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट सी ओनली, यानी कि बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इससे ही प्रूव कर सकते हो। सी के अंदर टोटल 29 आने चाहिए, 29 में से 6 + 4 10 + 8 यानी कि 18 आ चुके हैं, तो बाकी कितने बचेंगे 11, जिसको हम क्या कहेंगे ओनली सी।
राइट। ये जो ब्राउन पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, ओनली सी। सो ओनली सी के लिए आपको 3 वैल्यू 29 में से माइनस करनी पड़ेगी, 4, 8 एंड 6। सो 29 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 11। 29 minus 18 that means 11. So the number of people who like product C only is 11, hence 11 people like the product C only. So यहाँ पे आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। कोई भी डाउट हो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। थैंक यू।